Hello everyone, welcome to Career Launcher, and in today's session we are going to talk about Alphanumeric Series for CSAT. Okay, so what we are going to do in today's session, there are going to be a lot of questions that are going to be of alphabets as well as numbers. So now let's start those questions and see what kind of questions we can have. So basically, if you are going to see these questions, so in these questions there are going to be alphabets, there are going to be few numbers, and your job is to figure out what is the next term or which of the term that is wrong. Okay, so for this, always remember your job is to remember all the alphabets and their corresponding numbers. So for example, A is 1, B is 2, C is 3, D is 4, E is 5, and so on. So basically, if you remember all those alphabets and corresponding numbers, then these kind of questions are simply going to be a cakewalk for you. They won't even be difficult for you. Okay, so basically what I am going to do, I am going to write down the first alphabet of every term. So I am going to write X, B, S, O, J. Okay, so X is, which letter is X is going to be 24. V is going to be what, 22. S is going to be what, 19. O is going to be what, 15. J is going to be what, 10. Okay, now if you see what is the difference, you can see here that is 2. What is the difference you can see here? 3. What is the difference you are going to see here? 4. What is the difference? 5. So what is going to be next difference? That is going to be 6. So you are going to 4 here, and 4 corresponding to 4 corresponds to which alphabet? That is D. So it means my first letter of the next term should be D. Okay, so it means this option is eliminated as well as this option is eliminated. Now I'm left out with two options, B and D. So what I'm going to do, I'm going to start with G, then I'm going to write J, then I'm going to write N, then Q, then U. Okay, so G is what, 7, J is what, 10, N is what, 14, Q is what, 17, it is 17, and it is going to be what, 22. It is okay, so what is the difference here? That is 3. What is the difference here? 4. What is the difference here? That is 3. What is the difference here? That is 4. Now what should be the next difference? So if you see, there is alternate differences, 3 4 3 4. So next should be 25. The next difference should be 3, and 25 is equivalent to which alphabet? That is going to be Y. So it means last letter should be Y. So I am going to get my answer as option D. I don't even need to calculate what is going to be the middle number. I'm directly going to calculate the first alphabet and last alphabet, and I'm going to get my answer because there is only one option that has it. So कि कोई भी क्वेश्चन जो अपना होगा जहां पे अल्फाबेट्स वाली सीरीज होगी, हमेशा याद रखिए अल्फाबेट को अल्फाबेट की तरह मत लीजिए, अल्फाबेट को करस्पॉन्डिंग नंबर्स के हिसाब से लीजिए, तो उससे चीजें बहुत आसान हो जाएंगी. उससे कोई भी अल्फान्यूमेरिक सीरीज का या अल्फाबेट सीरीज का कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो सकता है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. ओके, सो क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक टर्म गिवन है और उससे हमें ये निकालना है. सो पहला अल्फाबेट क्या है? बी. बी का नंबर क्या होगा? बी का नंबर होगा 2. ठीक. उसके बाद पहला अल्फाबेट क्या है? आई. आई का नंबर क्या है? 9. ओके. उसके बाद अगला अल्फाबेट क्या है? पी. पी का नंबर क्या है? 16. उसके बाद अगला नंबर क्या है? डब्ल्यू. डब्ल्यू का नंबर क्या है? 23. Okay, what is the difference? 7. What is the difference? 7. What is the difference? 7. So what should be the next alphabet? 30. Now the problem is alphabet तो 26 होते हैं, 26 के बाद खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन 26 के बाद खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन ये 26 पे खत्म नहीं हो रहा, ये जा रहा है 30 तक. So whenever you get a number that's greater than 26, आप उसमें से 26 माइनस कर दीजिए. राइट, सो व्हाट यू आर गोइंग टू गेट? यू आर गोइंग टू गेट 4, क्योंकि आफ्टर आप 26 पे जाते हैं तो सीरीज वापस से शुरू हो जाती है. तो एक्स वाई जी, उसके बाद ए बी सी वापस शुरू हो जाएगा. सो आप अब हम लोगों को कौन सा लेटर मिलेगा? फोर्थ लेटर. सो 26 के बाद मुझे फोर्थ लेटर चाहिए. सो ए बी सी एंड डी. सो फोर्थ लेटर इज गोइंग टू बी डी, एंड
आई कैन डायरेक्टली गेट द आंसर, दैट इज ऑप्शन ए। मुझे बाकी चीजें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे एक ही ऑप्शन है जिससे मेरा आंसर आ रहा है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? अगला क्वेश्चन सिमिलर है। सो डी इज व्हाट? डी को हम 4 बोल सकते हैं, जी को हम क्या बोल सकते हैं? 7, जे को क्या बोल सकते हैं? 10, एम को क्या बोल सकते हैं? 13। ठीक है। सो यहाँ पे अगर हम डिफरेंस देखें तो 3 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 3 का है, यहाँ पे डिफरेंस देखें तो 3 का है। तो अगले में डिफरेंस क्या होगा? अगले में भी डिफरेंस 3 का होगा तो क्या होगा? 16। सो 16 का मतलब क्या होगा? पी। किस ऑप्शन में पहला अल्फाबेट पी है? ऑप्शन डी में। आंसर तुरंत ही आ गया, आगे कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत हमको नहीं है, ये ध्यान रखिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? सिमिलर टाइप के क्वेश्चन, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज या अल्फाबेट की जो सीरीज होती है उसमें अप्रोच हमेशा ही सेम रहेगा, कभी सोचने की जरूरत नहीं है, आंसर हमेशा इसी तरीके से आएगा और जल्दी आएगा। चलिए सो यहाँ पे जो पहला अल्फाबेट है वो है डी, दूसरा अल्फाबेट है ई। सो उसके बाद पहला अल्फाबेट क्या है? बी, दैट इज 2। उसके बाद अगला क्या है? ई, दैट इज 5। अगला अल्फाबेट क्या है? जी, दैट इज 7। अगला अल्फाबेट क्या है? आई इज 9। अगला क्या है? एम इज 13। पी क्या है? 16। ओके। अब यहाँ पे हमको कोई पैटर्न तो नहीं दिख रहा, यहाँ पे भी हमको कोई पैटर्न नहीं दिख रहा क्योंकि कुछ रैंडम चीजें हैं, ना कुछ मल्टीप्लिकेशन हो रहा है ना कुछ एडिशन हो रहा है, तो हम इसमें कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। तो एक काम करते हैं, आखिरी नंबर पे जाते हैं। तो यहाँ पे 81 है, 81 को मैं 9 स्क्वायर ले सकता हूँ। 49 है, 49 7 स्क्वायर है। 256 है अपना 16 स्क्वायर है। 841 29 स्क्वायर है। सो अगर हम यहाँ पे देखें, सो 4 + 5 9 का स्क्वायर है, 2 + 5 7 का स्क्वायर है, 7 + 9 16 का स्क्वायर है, 13 + 16 29 का स्क्वायर है। इसका मतलब इसका और इसका जो सम है, तो आखिरी जो नंबर होना चाहिए वो इन दोनों के सम का स्क्वायर होना चाहिए। ठीक, पहला ऑप्शन में सीधे ही रिजेक्ट कर सकता हूँ क्योंकि 529 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता। 729 27 का स्क्वायर होता है। 289 किसी भी नंबर का स्क्वायर नहीं होता और 576 24 का स्क्वायर होता है। तो मुझे केवल दो ही नंबर देखने हैं, के एन और के एन। ठीक है। सो के का नंबर क्या होगा? के इज 11। एन का नंबर क्या होगा? 14। 11 + 14 इज व्हाट? 25। सो साथ में जो नंबर होना चाहिए वो 25 का स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन 27 का है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं है। तो अपना आंसर क्या आएगा? ऑप्शन डी। सो के की वैल्यू है 11, एम की वैल्यू है 13। तो जो जो नंबर होना चाहिए वो 24 का स्क्वायर होना चाहिए। क्या वो 24 का स्क्वायर है? इसलिए अपना आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन डी। तो इस तरीके के क्वेश्चन में कई बार हमको ऐसा लगता है कि ये बहुत रैंडम से नंबर दिए हुए हैं, कोई पैटर्न नहीं बन रहा, तो उसके बाद आप साथ में जो कांस्टेंट नंबर दिया हुआ है उस पर भी थोड़ा देखेंगे तो उससे भी आंसर आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सो अगले में केवल अल्फाबेट है। सो दिस इज अ सीरीज ऑफ अल्फाबेट्स ओनली। सो अप्रोच क्या लेंगे? वी आर गोइंग टू टेक सेम अप्रोच जो हमने अभी तक ली है। व्हाट इज सी? सी इज 3। व्हाट इज जी? जी इज 7। व्हाट इज के? के इज 9। ओके। उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा पता नहीं। उसके बाद क्या बोला हुआ है? यहाँ पे के 9 नहीं होगा, ये गलती हो गई। के क्या होगा? 11। उसके बाद एस कितना होगा? सो बीच में एक नंबर मिसिंग है और एस कितना होगा? 19। सो अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 4। यहाँ पे डिफरेंस क्या है? 4। तो यहाँ पे डिफरेंस क्या होना चाहिए? 4। मतलब नंबर होना चाहिए 15। फिर यहाँ पे भी डिफरेंस क्या होना चाहिए? 4। इसका मतलब जो पहला अल्फाबेट होना चाहिए वो 15th लेटर होना चाहिए और 15th लेटर अपना कौन सा है? ओ। सो अपना पहला नंबर तो पहला अल्फाबेट तो आ गया। तो इसका मतलब ये ऑप्शन तो नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता। अब हमें आर या क्यू में से पता करना है। एक्स क्या होगा? एक्स इज 24। डब्ल्यू क्या होगा? 23। यू क्या होगा? 21। ठीक है। एन क्या होगा? एन होगा अपना 14। तो अगर यहाँ पे देखें तो एक का डिफरेंस है, यहाँ पे देखें 2 का डिफरेंस है। अगर यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4 का डिफरेंस लें तो क्या ये बन रहा है? हाँ ये बन रहा है। तो यहाँ पे कौन सा लेटर आना चाहिए? 18th।
जो लेटर होगा वो कौन सा होगा, आर होगा। तो अपना यहाँ पे आंसर जो आएगा वो आएगा ऑप्शन ए, दैट इज ORNP. So whenever we are going to solve these kind of questions, always remember, just keep on looking at the options as well, क्योंकि आपको कभी भी पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इन मेजोरिटी ऑफ द क्वेश्चंस आपको एक या दो चीजें कैलकुलेट करनी पड़ेंगी, उससे आपका पूरा आंसर फाइनली आ जाएगा। With this, we are concluding this session. If anyone has any doubt, kindly write a message in the comment box and we'll get back to you. Thank you.